Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the classification of industries. Under the section, we have covered most of the classification of the industry as on the basis of capital investment, on the basis of raw materials used over there. Okay? So, firstly, we are going to discuss about the industries on the basis of raw material used for them. Under this section, the first category is agro-based industry. As we have already discussed about the industry in which the raw material is being taken as a natural process or a biological process is goes under this category. Some of the agro-based industries are there like cotton, jute, silk, woolen textile, sugar and edible oils, etc. So one by one we will discuss. First we will discuss about the industry, that is textile industry. See, under the textile industry, there are also a number of proto industries which is established within a one textile industry, which simply do a different types of the work that provides the garments to you. The first work is raw material, that is fiber productions. This is the raw material, and as you know that this raw material is being produced with the help of the natural process, so it will go under the category of the agro waste. Then the second step is spinning. Spinning is being done by the yarn. Then after weaving and knitting, and spinning means the fabric or raw fiber will convert into the thread, and then this thread is knitted or waved and it becomes a fabric, and this fabric is dyeing and finishing, then it become a garment. So see, the textile industry occupied unique position in Indian economy. ठीक है, एक important parts है economy का textile industry because it contributes a significance to the industrial production, employments generation and foreign exchange earning. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो एक रिमार्केबल है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ things to the Indian economy, or you can say the contributions under this secondary sector is being done by mostly is being done by the textile industry. It is also providing the employments and also giving the chances to establishment of other raw material industries too. It is a only a industry in the country which self-reliant and complete in the value change, that is from raw material to the highest value. ठीक है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कंट्री में जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक सब अपने आप बनाती है. ठीक है, सो दैट्स वाई इट्स ऑन द टॉपेस्ट पोजिशंस. नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल. तो ये सब जो है वो कहीं देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पार्ट, दैट इज़ कॉटन टेक्सटाइल. In the ancient time, the cotton textile was produced with hand spinning, handloom weaving techniques. After 18th century, power looms came into use and our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the मिल मेड क्लोथ्स फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है, देखिए अगर एक चैप्टर है आपका हिस्ट्री में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें कम्प्लीटली ये शो किया गया है कि कैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया गया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया था. तो उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हाईलाइट किया जाता है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था और इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन होता था और कॉटन की स्पिनिंग और विविंग का जो वर्क है वो हाथ से किया जाता था. लेकिन जब ब्रिटिश ने पावर लूम बनाना शुरू कर दिए, जो पावर ऑपरेटेड लूम होते थे, तो उनके जो क्लोथ्स थे वो फास्ट बनते थे और इसके अलावा वो चीप भी हुआ करते थे. तो उस सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो इंडिया की जो एजेंसी थी, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थी, वो सेटबैक हो गई थी, यानी पूरी तरीक़े से पिछड़ गई इंग्लैंड से. ठीक है, अर्ली ईयर्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. ठीक है, धीरे धीरे देखिए दो प्लेसेस थे जहाँ से ट्रांसपोर्टेशंस किए जाते थे, सूरत और गुजरात के साइड से, दैट इज़ महाराष्ट्र एरिया से, गुजरात एरिया से. तो स्टार्टिंग में वहीं पर था. अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल मार्केट ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड एसेसिबिलिटी पोर्ट्स फैसिलिटी लेबर मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन. लोकलाइजेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्र का एरिया है, गुजरात के आसपास का एरिया है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए,
वो वहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, तो ज़्यादातर कॉटन मिल्स या कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज़ में हैं। इसके अलावा पोर्ट की फैसिलिटीज़ भी है वहाँ से, जो इजी ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है। मॉइस्ट क्लाइमेट भी होती है वहाँ की, ह्यूमिड क्लाइमेट भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पर स्टैब्लिशमेंट है। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू द फार्मर। कॉटन बॉल pluckers and workers engage in ginning, spinning and weaving, weaving, dyeing and designing, packaging, टेलरिंग्स एंड स्विंग मीन्स बहुत सारे जो हैंडलूम्स के काम करने वाले लोग हैं, प्लकर्स हैं, वीवर्स हैं, वो सब सारे के सारे इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ डिमांड सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्री सच एस। अब क्या होता है, जब एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो इट ऑल्सो गिव द अपॉर्चुनिटी and the establishment of other industries too, because it increases the demand of the raw material that can be fulfilled by some other industries too। तो उसमें जैसे कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी इंडस्ट्री हैं जो डाइंग का काम करती हैं। तो जब कॉटन इंडस्ट्री इंप्रूव हो रही हैं तो फिर वो इंडस्ट्रीज़ भी इंप्रूव होंगी, क्योंकि ये उनको अपना फिनिश मटेरियल्स के लिए इन्वॉल्व करेंगे या उनसे रॉ मटेरियल्स लेंगे, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल्स है, इंजीनियरिंग वर्क है, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी इम्प्रूव हो रही हैं। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग्स इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड द स्कोप ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिंग स्किल्स एंड डिज़ाइनिंग वीविंग इन द कॉटन। देखिए, स्पिनिंग का काम अभी भी जो सेंट्रलाइज्ड है वो महाराष्ट्र में ही होता है, लेकिन जो वीविंग का और निटिंग का काम है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, गुजरात में फैल गया, तमिलनाडु के एरियाज़ में फैल गया, क्योंकि कॉटन की डिज़ाइन वीविंग, उसके बाद सिल्क है, जरी है, एम्ब्रॉयडरी है, ये अलग अलग एरियाज़ में अच्छे तरीके से की जाने वाली वीविंग्स का काम होता है, निटिंग का काम होता है। तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज किया गया, यानी अलग अलग जगह पे इसको फैला दिया गया। इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूसिंग इन स्पिनिंग, but weaving supply low quality of fabric as it could be much of the high quality yarn produced in the country, ठीक है। इंडिया का स्पिनिंग में नंबर 1 है लेकिन स्पिनर्स इंडिया बना देते हैं, स्प्रिंडल्स बना देता है, लेकिन जब बात आती है विविंग की, तो विविंग के केसेस में जो इंडिया है वो पिछड़ जाता है, क्योंकि विविंग के लिए जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो वर्ल्ड की और कंट्रीज़ में और बेटर हैं। विविंग इज़ डन बाय द हैंडलूम, पालूम एंड अ मिल, ठीक है। द हैंड स्पॉन्स खादी प्रोवाइड्स अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट्स टू द वीवर्स इन देयर होम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। जो खादी हैं वो आपका आसपास के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लोगों को हैंडलूम के काम में उसमें भी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब इंडिया एक्सपोर्ट यार्न्स टू जापान, यानी इंडिया का जो यार्न होते हैं, जो पूरे व्हील्स बने होते हैं थ्रेड्स के, वो जापान को सप्लाई किए जाते हैं, और अदर इम्पोर्टर्स टू द कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्री, इन सब में इंडिया का जो है वो मटेरियल्स इंपोर्ट किया जाता है कॉटन, लेकिन जापान यहाँ से सीधे यार्न को इंपोर्ट करता है। वी हैव अ लार्ज शेयर्स इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न्स, ठीक है। यानी वर्ल्ड में आप देख सकते हो कितनी सारी कंट्री, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, तो इतनी सारी कंट्रीज़ में जब इनकी सप्लाई होती है तो ऑब्वियसली वी हैव अ वर्ल्ड वेरी गुड शेयर। आर स्पिनिंग मिल्स आर competing at the global level and capable to using all the fabrics we produce, ठीक है। The weavings, knittings and process unit cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country, यानी स्पिनिंग जो है वो अभी भी स्पिनिंग जो है वो अभी भी टॉप पोजीशन पर है, और जो वीविंग का काम है वो अभी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। देयर इज सम लार्ज एंड द मॉडर्न फैक्ट्रीज इन द सेगमेंट, बट most of the most of the production is fragmented small units which caters to the local market, ठीक है। नहीं, अभी भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो केवल स्मॉल फ्रेगमेंट्स नहीं है जो कि लोकल मार्केट को कवर कर पाता है। दिस मैच इन द मेजर ड्रॉबैक्स फॉर द इंडस्ट्री एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी स्पिनिंग एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल एपेल्स गारमेंट्स मैन्युफैक्चर हैज़ टू इम्पोर्ट द फैब्रिक, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग ने डिस्कस किया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। और यू जस्ट टेक अ लुक ऑन द मैप, देखिए मैप को एक स्क्रीन कर रहा हूँ, आप देखिए कॉटन टेक्सटाइल जो है इट इज़ बीइंग डिस्प्लेड विद अ ब्लैक कलर डॉट। तो ज़्यादातर जो डॉट हैं जो कॉटन टेक्सटाइल के वो इस एरियाज़ में हैं, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र का आसपास के एरिया हैं। ये देखिए महाराष्ट्र का एरिया है, ये गुजरात के एरिया हैं, ये एमपी के एरिया, मध्य प्रदेश के, तो इन एरियाज़ में ज़्यादातर कॉटन का प्रोडक्शन
किया जाता है। जबकि देखिए वूलन का जो प्रोडक्शन है वो जनरली इन हिली एरियाज़ में ही होता है, हिली एरियाज़ उसके आसपास के एरियाज़ में किया जाता है। और इसके बाद आइए सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कुछ ही लिमिटेड प्लेसेस हैं जहाँ पे किया जाता है, जैसे आपका ये मैसूर है, ये बेलागवी है, इन कुछ प्लेसेस पे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है या यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे आप और भी हैं कुछ, जैसे ये है बंकुडा है, तो दीज आर बेसिकली, ठीक है। ओके, thank you very much. In the next video we will discuss about the further portion of the same chapter. Thank